In this video, we are going to learn some examples on a vector product. Vector product का और नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी है, उसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं sometimes. Okay, so we have done 2-3 examples on vector product. Now हम लोग आगे थोड़े examples करते हैं. Example number 1. If theta is the angle between the vectors 3i plus 2j minus 6k, 3i plus 2j minus 6k and 4i minus 3j plus k. Then find the value of sin theta. Then find the value of sin theta. Okay, we are given two vectors and उसके बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा. सो हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन थीटा की. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन थीटा की फॉर्मूला क्या है. ओके, बट फाइन, लेट एक्स बार हम लोग ले लेते हैं 3i plus 2j minus 6k. So we can write this vector like 3 2 minus 6. Now let y bar equal to 4i minus 3j plus k. So we can write 4 minus 3 1. Okay, so these are the given vectors. Now हमें sin थीटा की एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज थीटा. ओके, ये a बार x बार है और ये है y बार और उसकी जो बीच का एंगल है दैट इज थीटा. सो द फॉर्मूला फॉर sin थीटा इज modulus of x bar cross y bar upon mod x bar mod y bar. So it is the formula for sin theta. Okay, we have to just simply find out this all three terms and we will substitute this in this term. So first we will find modulus x bar. Modulus x bar is 3 2 minus 6. So modulus x bar will be 3 square plus 2 square plus minus 6 square. So it is 9 plus 4 plus 36. It is under root of 49. 49 under root of 49 is 7. Now next, modulus of y bar. Modulus of y bar is under root of 4 square plus minus 3 square plus 1 square. 16 plus 9 plus 1. That is under root of 26. 4 minus 3 1. 16 plus 9 plus 1. Okay, so that is 26. Now अब हम फाइंड करेंगे x बार क्रॉस y बार. सो आप याद करो x बार क्रॉस y बार में आता है डिटर्मिनेंट. ओके, डिटर्मिनेंट में लिखना है हमें पहले i j k देन 3 2 minus 6. x bar is 3 2 minus 6 and y bar is 4 minus 3 1. Now x bar cross y bar is in determinant I j k 3 2 minus 6 and 4 minus 3 1. Now इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? I in bracket इसको हाइड कर दो. 2 into 1 2 minus 6 into 3 18. So minus minus plus 18 minus j 3 into 1 3
माइनस 6 इंटू 4 माइनस 24, बट ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस 24. 2 माइनस 18, 3 माइनस 24 माइनस, ओके. नाउ प्लस के 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 माइनस 8. So 2 minus 8 is minus 16i. Minus 16i. 24 plus 3 is minus 27j. और 9 8 minus 17k. Minus 16i plus minus 27j and minus 17k. So now what we have? X bar cross y bar equal to minus 16 minus 27 minus 17. So x bar cross y bar is minus 16 minus 27 minus 17. So therefore modulus of x bar cross y bar equal to under root of minus 16 square plus minus 27 square plus minus 17 square. So ये हो गया 256. 27 का स्क्वायर रूट 729, 17 का स्क्वायर रूट 289. अब इसका एडिशन हो गया 1274 और 1274 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ओके सॉरी 1274. Now so we have modulus of x bar cross y bar is under root of 1274. So अंडर रूट 1274 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 49 इंटू 26. ओके, सो 49 का स्क्वायर रूट ऑफ 7 और अंडर रूट 26. नाउ हमारे पास साइन थीटा की फॉर्मूला क्या थी? साइन थीटा इज मॉड्यूलस ऑफ एक्स बार क्रॉस वाई बार अपॉन मोड एक्स बार मोड वाई बार. सो एक्स बार क्रॉस वाई बार की मॉड्यूलस वैल्यू मिली 7 अंडर रूट ऑफ 26. ओके, और नीचे मॉड्यूलस एक्स की वैल्यू, मॉड्यूलस एक्स की जो वैल्यू थी दैट इज 7, वाई की अंडर रूट 26. सो ये हो गई 7 अंडर रूट 26. सो ये कैंसल. सो देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू 1. तो यहाँ पे हमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो साइन थीटा की वैल्यू हमें मिल गई 1. अगर ऐसा पूछा कि थीटा की वैल्यू फाइंड करो, सो इन दैट केस थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1. अब ये फाइंड करना है कि साइन की वैल्यू किस पे 1 होती है, तो 0 पे. सो 0 डिग्री बिकॉज सॉरी 90 डिग्री बिकॉज साइन 90 इज 1. ओके, सो थीटा हो गया हमारा 90 डिग्री और यू कैन से π/2 रेडियन बिकॉज साइन 90 की वैल्यू होती है 1. सो थीटा इज 90 डिग्री. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 2. Show the angle between, show that the angle between the vectors I plus j minus k and 2i minus 2j plus k is
साइन इनवर्स अंडर रूट 26/27. ओके, यहाँ पे we have to show that the angle between these two vector is sin inverse under root 26/27. So obviously यहाँ पे हमें sin थीटा की फॉर्मूला ही अप्लाई करनी पड़ेगी. So let first we take that x bar equal to I plus j minus k. तो उसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं. सॉरी, चलो I plus j minus k, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 1 और -1. y bar इक्वल टू 2i minus 2j plus k. तो 2 minus 2 1. So x bar is 1 1 minus 1 and y bar is 2 minus 2 1. ओके, नाउ साइन थीटा की फॉर्मूला तो हमें ये याद करनी पड़ेगी. मॉड्यूलस ऑफ एक्स बार क्रॉस वाई बार अपॉन मोड एक्स बार मोड वाई बार. ओके, सो देयरफॉर फ्रॉम एक्स बार एंड वाई बार मॉड्यूलस ऑफ एक्स बार इज अंडर रूट ऑफ 1 1 1. सो 1 square 1 plus 1 plus 1, that is under root of 3. And modulus of y bar, so modulus of y bar is 2 square 4 4 1. 4 plus 4 plus 1, that is under root 9, so it is 3. So now अब हम फाइंड करेंगे x बार क्रॉस y बार. x बार क्रॉस y बार is the determinant value of I j k. x बार के कोऑर्डिनेट है 1 1 minus 1 1 1 minus 1. y बार है 2 minus 2 1 2 minus 2 1. नाउ इसे सॉल्व करते हैं. I in bracket 1 into 1 1 minus 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 plus 2 minus j 1 into 1 1 minus 2 into minus 1 minus 2, बट यहाँ पे भी माइनस है, सो प्लस 2 प्लस k 2 into 1 into minus 2 minus 2 minus 2, that is minus 1 minus 2 is minus 1, so it is minus I. 2 plus 1 3 minus 3j minus 2 minus 4k. So we have x bar cross y bar equal to minus 1 minus 3 and minus 4. Okay, this is our x sin theta की ये फॉर्मूला है. So it is our mod x bar, it is mod y bar और ये x bar cross y bar. अभी हमें फाइंड करनी है वैल्यू x बार क्रॉस y बार की. मॉड्यूलस ऑफ x बार क्रॉस y बार, सो वो हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16, दैट इज अंडर रूट ऑफ 26. ओके, सो ये हो गया हमारी रिजल्ट नंबर 4. सो देयरफॉर फ्रॉम रिजल्ट 1 2 3 and 4 we have sin theta equal to, हमारे पास क्या है, मॉड्यूलस x बार क्रॉस y बार, दैट इज अंडर रूट ऑफ 26. मॉड x बार की वैल्यू है अंडर रूट 3, मॉड y बार की वैल्यू है 3. ओके, नाउ अब अंडर रूट 3 तो है यहाँ पे, बट 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 9, बिकॉज अंडर रूट ऑफ 9 क्या हो जाएगा 3, बिकॉज अंडर रूट ऑफ 9 इज 3. तो 3 की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे अंडर रूट 9. सो साइन थीटा हो गया अंडर रूट 26 और नीचे अब दोनों स्क्वायर रूट वाले टर्म हो गए, तो वी कैन मल्टीप्लाई देम. सो 3 into 9 दैट इज 27. सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक ही स्क्वायर रूट में 26/27. सो थीटा इज साइन इनवर्स अंडर रूट 26/27. सो अगेन आई रिपीट,
यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो साइन थीटा साइन इनवर्स √26/26 प्रूव करना है। तो ये फॉर्मूला हमें याद रहनी चाहिए। साइन थीटा इज मॉड्यूलस x बार क्रॉस y बार अपॉन मोड x बार मोड y बार। अब हमें मोड x बार मोड y बार की वैल्यू फाइंड की, फिर x बार क्रॉस y बार की वैल्यू फाइंड की। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक हमें वेक्टर मिलता है। ओके, सो हियर वी हैव अ वेक्टर, x बार क्रॉस y बार इज ऑलवेज अ वेक्टर, बट हमें इसमें उसकी मॉड्यूलस वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसकी मॉड्यूलस वैल्यू क्या हो गई? √26। ओके, नाउ फ्रॉम these four results we have sin theta is √26 √3 into 3, but 3 को हम लिख सकते हैं √9 because √9 is 3। so सारे टर्म्स स्क्वायर रूट वाले हो गए। so ऊपर √26, नीचे √27, 3 into 9 27। so finally we have theta equal to sin inverse √26/27। okay, so they are the important example. Now next example number 3. If the vectors I minus 2j plus 3k and I plus 2k represent two sides of a triangle, find the area of the triangle. Find the area of a triangle. Now here we are given that here we have a triangle, okay, and समझो कि ये जो पहला है that is x बार और सेकंड वेक्टर इज y बार। so ये है हमारा x बार और ये है हमारा y बार। so x बार और y बार जो है they are representing a sides of a triangle। तो हमें क्या फाइंड करना है? उसका एरिया फाइंड करना है। अब मैंने आपको नोट्स में समझाया था कि अगर दो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो उसकी एरिया की फॉर्मूला क्या है? उसके एरिया की फॉर्मूला है 1/2 मॉड्यूलस ऑफ x बार क्रॉस y बार। अगर ये दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम मतलब कि समांतर बाजू चतुष्कोण, अगर पैरेललोग्राम की साइड रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसकी फॉर्मूला है ओनली उसके एरिया फाइंड करने की फॉर्मूला है ओनली मोड x बार क्रॉस y बार। बट हियर वी आर गिवन द ट्रायंगल, सो ट्रायंगल के लिए 1/2 मॉड्यूलस x बार क्रॉस y बार होगा, वो हमें याद रखना है। ठीक है, सो एग्जाम्पल बस थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी उसका सॉल्यूशन एकदम इजी है। तो ये दोनों वेक्टर्स है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो ये सिंपली हमें लेट x बार इक्वल टू I माइनस 2j प्लस 3k, तो उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 और 3। y बार इज I प्लस 2k, यहाँ पे j नहीं है तो j की जगह पे 0, तो इसको लिख सकते हैं I प्लस 0j प्लस 2k, सो 1 0 और 2। ओके, सो देयरफॉर x बार क्रॉस y बार, x बार क्रॉस y बार इज ijk 1 माइनस 2 3 1 0 2। So now I bar in bracket -4 minus 0 minus j 2 minus 3 plus k 0 minus 2, बट यहाँ पे +2 हो जाएगा। सो x बार क्रॉस y बार वेक्टर मिला हमें -4 minus 0 -4 I, 2 minus 3 is -1 minus minus plus 1j, 0 plus 2 2, so it is 2k। so x बार क्रॉस y बार हमें मिला -4 1 और 2।
सो देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ x बार क्रॉस y बार वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ -4 स्क्वायर दैट इज 16, 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 4, सो इट इज अंडर रूट ऑफ 21. So therefore modulus x bar cross y bar is under root of 21. So therefore area of a triangle is 1/2 mod x bar cross y bar. So this is 1/2 modulus x bar cross y bar is under root of 21. So answer is under root 21/2. So therefore the area of a triangle is under root 21/2. अब सेम एग्जाम्पल है, आप खुद ट्राई करना. इफ द vectors (1, 1, -2) and 1, -2, 1 represent two adjacent sides, of a parallelogram find the area of a parallelogram. Find the area of a पैरेललोग्राम. ओके, ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है. मैं आपको समझा देती हूं. यहां पे हमारे पास है समझो, यहां पे हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और उसकी दो साइड्स हमें दी गई है. ओके, दैट इज एक्स बार और वाई बार. अब हमें फाइंड करना है इसका एरिया. तो उसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? सिंपली उसकी एरिया की फॉर्मूला है मॉड्यूलस ऑफ एक्स बार क्रॉस वाई बार. अगर ट्राइंगल फॉर्म, सीधी बात है, अगर पैरेललोग्राम है तो उसकी मॉड्यूलस एक्स बार क्रॉस वाई बार. अगर ट्राइंगल है तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हो जाएगा. ओके, तो उसके लिए हमें हाफ करना पड़ता है अगर ट्राइंगल के बारे में हो तो. बट यहाँ पे हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ अ पैरेलल.